सबसे पहले मैं I would like to thank ELITS for organizing this wonderful conference, for sharing various ideas, and I would like to thank them for giving me this opportunity to present my views on information and communication technology that is being used in the basic Shiksha department for the welfare and development of the children. Also, I would like to welcome all the esteemed guests and dignitaries present here. बेसिक शिक्षा विभाग में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स में काफ़ी वृहद रूप से कार्य हुआ है. इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, it has enabled learning in transforming the education and improving the learning experience for students through various models that has been taken up by the department. Firstly, through the development of ICT labs. In every blocks of this district, basically in districts we have multiple blocks, and in the blocks we have block resource centers where the administrative setup of the education holds. So in all the blocks, ICT labs have been set up. So around 880 labs have been set up in the entire state. This is to support the digital education and learning of the students. Through these labs, which include computer systems as well as interactive platforms, in which are being used to give trainings to the various teachers in the district, as well as roster wise children are invited to the school so that they have a basic holistic understanding of the computer setup as well as the learning environment. Also, another initiative that has been taken up is through smart classes. Around 18,381 smart classes has been set up from the department, and additional to that, around more than 20,000 smart classes have been set up with the help of the corporate social responsibilities initiative that is bestowed upon us through various NGOs as well as private partners. Through these smart classes, we as a department, with the help of NCRT as well as SCRT, has developed various online classes, online setups, online information, जिसके through बच्चों को जो हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज देते हैं, उसके साथ ही स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से जो ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं, ऑनलाइन डेमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, उसके माध्यम से हम उन लोगों को प्रैक्टिकल चीज़ें भी समझा पाते हैं. तो दीक्षा ऐप इज़ अ वेरी एग्जॉस्टिव प्लेटफॉर्म in which it has more than 10,000 lectures that has been developed from the by the SCRT, as well as help has been given by various private partners such as Pratham, Khan Academy, Imbibe, रीड अलॉन्ग ऐप एक्सेट्रा. तो उसके माध्यम से हम लोग बच्चों को स्मार्ट क्लासेस के माध्यम से पढ़ाते हैं. इसके साथ ही पॉकेट बुकलेट्स भी डेवलप की गई हैं जो बच्चे एज वेल एज टीचर्स दोनों के लिए है, जिसमें QR कोड के माध्यम से वो लोग स्कैन करते हैं और लेक्चर्स अपने घर पे भी देख सकते हैं. ये जो इनिशिएटिव था, ये कोविड में जब स्कूल अटेंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, तब ये इनिशिएटिव बच्चों द्वारा यूज़ किया गया, टीचर्स द्वारा उपयोग किया गया और काफ़ी उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहा. साथ ही हम लोगों ने 2,09,000 से ज़्यादा टैबलेट्स प्रोवाइड की हैं स्कूल्स में, विच इज़ यूज्ड फॉर डिजिटल एजुकेशन एज वेल एज असेसमेंट्स. तो दीज आर सम ऑफ द इनिशिएटिव्स दैट वी हैव टेकन. तो दिस ऑल्सो, अपार्ट फ्रॉम दिस, जो टीचर्स को हम लोग ट्रेन करते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एज वेल एज न्यूमरेसी के लिए, ऑफलाइन ट्रेनिंग के साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों उनको ट्रेन करते हैं, जिसमें दीक्षा ऐप बहुत ही सहयोगी साबित होता है. इसके साथ ही ई विद्या इज़ अ प्लेटफॉर्म जिसमें ऑनलाइन लेक्चर्स हैव बीन डेवलप्ड बाय द SCRT, एंड उसको टेलीविज़न के माध्यम से कहीं भी कोई भी उसका उपयोग कर सकता है. साथ ही ऑनलाइन सेशंस होते हैं हमारे एकेडमिक रिसोर्स पर्सनस के एज वेल एज हमारी कस्तूरबा के जो टीचर्स हैं, तो उसके माध्यम से भी ऑनलाइन हम लोग उनको जानकारी देते हैं. साथ ही खान अकेडमी मैथ्स और साइंस के हम लोगों के लिए काफ़ी डिटेल लेक्चर्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें वो टीचर्स को ट्रेन करती हैं जो इंटर्न बच्चों को इन लेक्चर्स के माध्यम से ट्रेन करते हैं. तो दिस
online setup, the information and communication technology has been very instrumental in, apart from this providing the children with this bookish knowledge, हम लोग उनको एक advanced stage में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त करा पाते हैं. ट्रेनिंग में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए बून साबित हुआ है द यूट्यूब लाइव सेशंस, जिसके माध्यम से हम 5 लाख से ज़्यादा टीचर्स को एक साथ, क्योंकि यूपी में जैसे आप देखते हैं इस प्रदेश में अराउंड 5 लाख से ऊपर टीचर्स हैं, तो उनको हम यूट्यूब लाइव सेशन के माध्यम से रेगुलरली ट्रेन एज वेल एज उन लोगों की स्ट्रेंथनिंग करते रहते हैं. अगर ये बात की जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को स्ट्रेंथन करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्य किया गया है, तो इसमें हम देखते हैं कि मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से हम लोगों ने HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें टीचर्स के ट्रांसफर्स हों, पोस्टिंग्स हों, लीव्स हों, पेरोल, सर्विस बुक, एवरीथिंग हैज़ बीन डन ऑनलाइन and more than 5 lakh teachers has been enrolled on this platform and things have been streamlined through this platform. The deployment of teachers to deficit schools through online portal is also being done. It is in process through this platform. एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा लिया गया है, जिसमें हर बच्चे को हम लोगों ने हर बच्चे के अभिभावक का अकाउंट हम लोगों द्वारा टैग किया गया है, और जो बेसिक बेनिफिट्स होते हैं स्कूल बैग्स के लिए, स्कूल बुक्स के लिए आदि, जो हम लोग उनको बेनिफिट्स देते हैं, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा जो फंड है उनके खाते में जाता है. दिस इज टू इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड reduce the time lag which was happening, because there are a lot of children जिनको हम लोग timely deliver नहीं कर पाते थे, but through this system every service is being delivered to them on a timely basis. So it helps in the equitable access to education to the children. जो बच्चे नहीं पहुंच पाते थे सिस्टम तक, कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों तक हम लोग स्वयं पहुंचे और उन लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके. अगर हम बात करें एजुकेशनल आउटकम्स मॉनिटर करने की, ये सारे जो हम लोगों ने डिस्कशन की, बेसिकली दीज आर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जिसमें हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं. बट अगर हम लोग ये देखें कि एजुकेशनल आउटकम्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी केयरफुली डिज़ाइन किए हैं मॉड्यूल्स, जो इंस्पेक्शन मॉड्यूल्स हैं और असेसमेंट मॉड्यूल्स हैं, जिसपे हम लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन से क्लास 1 और 2 के लिए निपुण असेसमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं. बहुत वृहद उसकी पिन पॉइंट्स हैं जो हम लोगों ने निपुण तालिका के माध्यम से वी हैव गिवन इट टू एवरी स्कूल, एंड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस ऑल्सो एवरी स्टूडेंट इंडिविजुअली इज मॉनिटर्ड कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितना सीख रहा है. रेगुलरली निपुण असेसमेंट ऐप जो हमारे डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, उसके माध्यम से हम लोग देख रहे हैं कि बच्चा किस लेवल पे आगे बढ़ रहा है और क्या उसका प्रोग्रेस है. इसके साथ ही हम लोगों के इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट असेसमेंट्स भी होते हैं जो नेशनल असेसमेंट टेस्ट के माध्यम से होते हैं, और साथ ही NAS जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके माध्यम से भी हमारे असेसमेंट्स होते हैं. Another initiative is through the Parakh app and holistic report card. The report card is also been digitalized and it's provided to the parents on a digital platform so that it could be easily visible and analyzed by each and everyone. One of the very important initiatives is through the Vidya Samiksha Kendra. An important observation of this is कि ये एक वृहद सेंटर है जो स्टेट द्वारा डेवलप किया गया है, जिसमें 40 से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं. दिस विद्या समीक्षा केंद्र बेसिकली प्रोवाइड्स अ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अ होलिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग. एग्जैक्टली फील्ड में क्या हो रहा है, कहाँ पे किस बच्चे का क्या असेसमेंट है, क्या उसके रिजल्ट्स हैं, उसको मॉनिटर करना, हर टीचर से कनेक्ट करना. So that we are doing through the Vidya Samiksha Kendra, and I think it is a wonderful setup that has been set up by the state, and I would also want to invite, if anyone would want to visit, it is a wonderful initiative that has been taken by the state government, and this data is being used to analyze and handhold the teachers, the ARPs as well as the SRGs, जिसमें हम लोग उनको help कर पाते हैं. So these are some of the initiatives that has been taken by the education department, and definitely information communication technology plays a big role in because education has always been something which was considered to be very bookish, but now the system is transforming, and I think we are also going as per the flow.
So thank you so much again for giving me this opportunity for communicating and telling each every one of you the initiatives that are being taken by us. Thank you.